It is started now. Welcome, dear friends. Today we have Rahul Rao with us, who is going to talk about the relevance of Buddhist culture in the modern world. He is a scholar from the Department of Pali, University of Mumbai, who is doing MPhil under the guidance of Dr. Yojana Bhagat under the Buddhist pilgrimages in India. And he will be talking today on the relevance of Buddhist culture in the modern world. As we all know that most of the Southeast Asian countries are Buddhist countries, and as per the demographic population of the religion, it is revealed that the Buddhist religion is the third largest religion in the world. So, what is the Buddhist culture that is there throughout the world will be discussed by Rahul Rao. Over to you, Rahul Rao. Thank you, sir. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Today my topic is relevance of Buddhist culture in modern world and why it is more important. We will try to understand it and enlighten ourselves why it is essential in today's time. So I'll just start once again. I'll just go with the introduction. Culture. What is culture? Culture is the collective term to identify the ideas, customs, and social behavior of a particular people or society. इसका मतलब है कल्चर का कि कल्चर एक जो सोच है, जो कस्टम्स है, जो बिहेवियर है आपस लोगों में, पर्टिकुलर पीपल के, पर्टिकुलर ग्रुप के और सोसाइटी के, उसको समझने पर एक कल्चर डेवलप होता है. So culture and religion are closely interwoven. Means कल्चर और रिलीजन साथ में चलता है. जैसे एक गाड़ी के दो पहिए, एक तरफ कल्चर है और एक तरफ रिलीजन है जो एक दिशा दिखाता है इंसानों के लिए. Are closely interwoven in any society. Culture is part and parcel of human life. Human values, skill, intelligence, and aesthetic beauty can be seen through cultural practices. Culture is the expression. Culture क्या है? Expression है of refined and beautiful traditions जो परंपरा चल रही है, सालों हजारों सालों से चली आ रही है. Cultural practices inspire करता है किसको? The human mind. Human passion can be calm, gratified, and ennobled through cultural practices. The glory of Asia depends a great deal on its culture, and in this respect, इससे कि मैं बताया जाता हूँ कि एंटायर जो एशिया है वो कंप्लीट डिपेंड है अपने कल्चर की वजह से, पूरे विश्व में उसका नाम है, उसको हम कहते हैं एशियन कल्चर. The glory of Asia depends a great deal on its culture, and in this respect, Buddhist culture has played a prominent role. इसमें एशिया के एंटायर एशिया में जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसका बहुत बड़ा दर्जा है. Has played a prominent role. Culture can also protect and promote a religion. So when we introduce religion through our cultural practices, our day-to-day religious activities will be more attractive and will be able to influence others to follow it as a living religion. जब एक कल्चर बढ़ने लगता है तो एक लिविंग रिलीजन को दिशा देता है. It influences everyone. We can say that cultural practices that are religious in nature are the stepping stone to understand the religious way of life. I mean, जो वे ऑफ लाइफ है, जीने की कला हम समझ सकते हैं, वो कल्चर का पाया है, मीन्स फाउंडेशन है, इसके अनुसार हम जीना समझ सकते हैं. Those who are not religious minded at the beginning will eventually get used to attending and appreciating religious activities. जो कोई इंसान पहले रिलीजियस नहीं होता नहीं है, पर जब कल्चर सब देखता है, ट्रेडिशन देखता है, कस्टम समझता है, तो अपने आप में उसमें चेंज आता है and start appreciating religious activities. By attending such activities, people will gradually get the opportunity to improve proper religious knowledge and understanding. If people are well educated and have improved their understanding and are personally noble, जब कोई इंसान अच्छा पढ़ा है, बस एकेडमिक्स में नहीं,
जी लाइफ में भी, तो इम्प्रूव करता है अपने अंडरस्टैंडिंग को और अपनी पर्सनालिटी को भी. आप पर्सनली नोबल. It is not very important for them to actively participate in traditional or cultural activities to be religious. Religion can contribute a great deal to enrich culture. It may be true to say that in Asian countries, generally, the practice of a religion is clearly linked to cultural activities. किस तरह कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ा है, हमें समझना है उसे. that are dances, songs, art, architecture, and drama very largely draw the inspiration from religious subjects. Without culture, religious activities may turn out to be a very dry and uninteresting. अगर कल्चर रिलीजन एक्टिविटीज नहीं रहेंगे तो वेरी ड्राई और ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, उसमें जान ही नहीं है. At the same time, when we practice Buddhism without disturbing other traditions or the followers of the religions of other religions, this form of tolerance and peaceful coexistence, along with a respectable behavior and gentle attitude, can also be regarded as a cultural aspect. इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, अगर बुद्धिज्म कोई और रिलीजन को या कोई अदर कस्टम को या कोई ट्रेडिशन को बिना कोई डिस्टर्ब किए फॉलो कर रहे हैं, तो सर्टेनली सब पूरे मानवता में इट विल हैव अ ग्रेट कोएग्जिस्टेंस बिटवीन पीपल. अब मैं बोलना चाहता हूँ, फॉर ओवर 1000 जैसे कि बोल सकते हैं 25 centuries, 2500 years, Buddhist ideas and ideals have guided and influenced the lives and thoughts of countless human beings. मीन्स इतने सालों की जो परंपरा है बुद्धिज्म का, उसने बड़े डायनेस्टीज, देश विदेश में इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है, लोगों में प्रभाव दिया है, उसकी गिनती ही नहीं है. द काउंटलेस ह्यूमन बींग्स इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज ले बुद्धिस्ट, हैज अ उपासक उपासिका, our own experiences and discoveries in life are not enough to give a true perspective on life. To bring ourselves closer to the ideal of a well-balanced man or woman, we need to acquire, at least in outline, what is called a cultural grounding in the Buddha Dhamma. So culture really reveals to ourselves and others what we are. It gives expressions to our nature in our manner of living and thinking, in the form of art, religion, ethical aspiration, and knowledge. Broadly speaking, it represents our ends in the contrast to means. A cultured man or woman has grown, for culture comes from the word meaning to grow. Culture का मतलब क्या है? Grow, बढ़ना. In Buddhism, the Arhant is the perfect embodiment of culture. He has grown. किस तरीके से वो है, हमें समझना चाहिए भी. He has grown to the apex, to the highest possible limit of human evolution. He has emptied himself of all selfishness, all greed, hatred, and delusion, and embodies flawless purity and selfless, compassionate service towards every being. Things of the world do not tempt him, for he is free from the bondage of selfishness and passions. He makes no compromises for the sake of power, individual or collective. तो इस तरीके से उसने भी अपने में कल्चर डेवलप किया है, और कल्चर डेवलप में करने पर, टीचिंग समझने पर, वो बुद्धिज्म के टीचिंग को समझकर वो अरहंत के स्टेप तक पहुंच गया है. In this world, some are born great, while others have greatness thirst on them. But in the Buddha Dhamma, one becomes great only to the extent that one has progressed in ethical discipline and mental culture, and thereby free the mind of self and all that implies. True greatness then is proportional to one's success in unfolding the perfection dormant in human nature.
अब हमें समझना है कल्चर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे. वी शुड देयरफॉर थिंक ऑफ कल्चर इन दिस वे. किस तरीके से? बिगिनिंग विद द रेगुलर ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 precepts. मीन्स पंचशील का फॉलो करना चाहिए. Positively and negatively, we gradually reduce our greed and hatred. राग और दोष को कम करना चाहिए. Simultaneously, we develop good habits. अच्छे हैबिट्स को डेवलप करना है. कैसे? Kindness, compassion, honesty, and truthfulness. Chastity and heedfulness. Steady, wholesome habits are the basis of good character. मैंने ये सब करने पर अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है हमें, विदाउट विच नो कल्चर इज पॉसिबल. पंचशील का फॉलो करेंगे, राग दोष को मोह से लिप्त होंगे, अच्छे हैबिट्स को अनुकरण करेंगे, मेत्ता करुणा करेंगे लोगों के साथ, सच्चाई में खड़े रहेंगे. लिटरली अपना कल्चर डेवलप होगा. देन लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा, we become great and cultured Buddhist. Such a person is rightly trained in body, speech and mind. वो जो इंसान, जो मनुष्य, लड़का या लड़की, he becomes trained in body, काया, वाचा और मन में, माना. A disciplined, well-bred, refined human being, able to live in peace and harmony with himself and others. And in this indeed is Dhamma. In order to grow, we also have to be active. अगर डेवलप होना है साथ में कल्चर को बढ़ाना है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो we have to grow. We also have to be active and energetic, diligent in wholesome conduct. There is no place for laziness and lethargy. लेथार्जी और लेजीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो उसकी जगह ही नहीं है बुद्धिज्म में. We must be diligent in cultivating all aspects of Dhamma in ourselves and all time. If we develop as a good individual, we automatically become cultured members of our society, mindful both of rights and duties. Buddhism addresses itself only to the individual thinking person. It has nothing to do with mass movement, for masses are just collection of individual men and women. Any true social development होता है, must therefore begin with the transformation of each individual person. अगर इंसान में कल्चर का एम्फसाइज अच्छा हो, certainly social development में भी उससे बहुत डेवलप होता है उसके साथ में. In this way, the ethical dilemma of an economically developing country like India with a background of Buddhist culture are resolved for a true lay Buddhist will aim at a personal progress in worldly matters only on the foundation of noble eightfold path. अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करें, उस पे चले, उपासक और उपासिका. Certainly जब ले बुद्धिस्ट उसको अनुकरण करने पर और कल्चर को डेवलप करने पर अपने अंदर, सर्टेनली एक अच्छा दिशा, मीन्स हम एक मिसाल बन सकते हैं. एक्चुअली मिसाल बने ही हैं. बुद्धिज्म ने पूरे विश्व में धम्म फैलाया है. अगर हम उसको सिस्टमेटिक करते रहे, सर्टेनली वो कल्चर डेवलप होते रहेगा. प्रोग्रेस बाय वे ऑफ अधम्म से दूर हो जाओ, अनराइटियसनेस से दूर हो जाओ, विल इवेंटुअली bring in its real disaster, pain and suffering. अगर हम धम्म में नहीं रहे, अधम्म में रहे, अनराइटियसनेस करते रहे, तो सर्टेनली वहां पे डिजास्टर आएगा, पेन है, सफरिंग है. वो किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए भी है, कम्युनिटी के लिए भी है और नेशन के लिए भी है. तो ये इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशन को उसमें से बाहर निकलना है, तो हमें धम्म पे राह पे चलना है. So Buddhism distinguishes between emotions that are constructive, such as metta and karuna, and those that are destructive, anger and jealousy, for instance. It encourages the cultivation of the former to eliminate the latter. हमें मेत्ता करुणा को बढ़ाना है और एंगर और जेलसी को, राग दोष मोह को निकालना है.
ह्यूमन बींग्स कैन बोथ थिंक एंड फील। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक पोटेंशियल है सोचने के लिए और फील करने के लिए इमोशनली। When the Buddha taught the Dhamma, जब बुद्ध ने धम्म सिखाया बताया, sometime he appealed to reason, sometime to the emotion। उन्होंने एक जगह पे उन्होंने स्ट्रक किया, किस पे स्ट्रक किया बुद्ध ने? रीजन पे। he appealed to reason, sometime to the emotion, उन्होंने डायरेक्ट इमोशन को समझा, and sometime to the imagination, मीन जो हम इमेजिन करते हैं, using such means of instruction। किस तरीके से? फेबल से, स्टोरीज, पोइट्री, बुद्ध ने समझाया हमें। सच बुद्धिस्ट कल्चर टू मैनिफेस्ट, कहाँ से आता है? इट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म that of a fine character such has in the field of literature। हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में? जानकारी कहाँ मिलती है हमें? जातकाज में, थेर गाथा में, थेरी गाथा में, फॉर एग्जाम्पल्स। किस तरीके से? फिलोसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के द्वारा। ये भी कल्चर का पार्ट है, उसमें कल्चर एम्बॉयड किया है। हम उसे जब देखते हैं, आर्ट को देखते हैं, आर्किटेक्चर को देखते हैं, स्कल्पचर को देखते हैं, हम समझते हैं कि उस टाइम कल्चर कैसा रहा होगा, और हम अभी भी उसको अनुकरण कर सकते हैं। बुद्धिस्ट कल्चर इज पेरेनियल एंड सो इज फ्रेश टुडे। अभी भी वो इतना फ्रेश है एज इट वाज इन द बुद्धास टाइम। मीन बुद्धा के समय पे इतना था, आज वैसे ही है 2500 years ago। इट इज ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, वो सेल्फ कंसिस्टेंट है एंड सेल्फ सस्टेनिंग है। Based as it is on eternal verities, verifiable by individual experiences। मीन्स एक्सपीरियंस पे है वो पूरा, लोगों के एक्सपीरियंस पे, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे है। इट इज नेवर ऑब्सोलीट एंड एनिमेट्स द प्रोग्रेस दैट सीम्स टू किल इट। द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड कल्चर पे, द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन वर्ल्ड कल्चर वॉज ट्रूली सिग्निफिकेंट। वो इतना एम्फोसाइज था इन इट, देयर इज नो इंटेलेक्चुअल एरर, उसमें कोई एरर ही नहीं है। बेस हैज इट इज ऑन रीजन, एक रीजन पे बेस है, एंड ऑन द बेडरॉक ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। मीन्स बुद्ध के जीवन में जो इंसिडेंट्स घटे उनके संग के दौरान, उनके 45 इयर्स एक्सपीरियंस में, वो सारे उससे इंटरलिंक है, वो रियल एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उसी में से हमें वो कल्चर मिला है। इट इज फ्री फ्रॉम मॉरल ब्लाइंडनेस, उसमें ऐसा कुछ नहीं अंधभक्त का काम नहीं, उसमें देखने का चीज नहीं है। इट इज फ्री फ्रॉम मॉरल ब्लाइंडनेस, फॉर इट्स एथिक्स इट इज ट्रूली लॉफ्टी, guided by rational basis, such as ethic, namely personal evolution in terms of one's own karma। It engendered no social perversity, उसमें से हमें कुछ hate, intolerance नहीं दिखता है, for none। Limitless loving kindness है उसमें, compassion है, किसके लिए? सबके लिए, for all, everybody, for all living beings। The door to deliverance were open to anyone who wished to enter them। Its thrilling message of reason, universal benevolence, flaming righteousness, social injustice, hope, and deliverance in this very existence by one's own exertion, all had a fertilizing and liberating influence on thought and action wherever Buddhism spread। जहाँ भी बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, हो किसका? थॉट का, एक्शन का। और ये सब में जानकारी कहाँ मिल सकती है बुद्धिस्ट कल्चर की? इसके लिए जो दो मेन सूत्र है वो हमें समझना है। जो मेन पहला सूत्र है वो है सिगालवाद सूत्र। सिगालवाद सूत्र, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं द ले पर्सन कोड ऑफ डिसिप्लिन। और इसके अलावा दूसरा जो सूत्र है वो दिग्ज्ञान सूत्र, द ले पर्सन कंडीशन ऑफ वेलफेयर। ये दो सूत्र का भी बहुत महत्व है। सिगालवाद सूत्र हमें कहाँ मिलता है? वो हमें दिग् निकाय में मिलता है। और किसको दिया था? सिगाल को दिया गया है। सिगाल को बताया गया है, मैंने बुद्ध और सिगाल का जो इंटरेक्शन है। कौन है सिगाल? वो यूथ है, मीन वॉज अ यूथ। उनसे इंटरेक्शन कर बताया गया कि कितने डायरेक्शन है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, डाउन एंड अप। इस पे उन्हें बुद्ध ने उनको समझाया है
कितना इम्पोर्टेंट होता है। अभी हमें समझना है कि उसने मुझे बताया कि नॉर्थ में क्या है। व्हाट इज नॉर्थ? नॉर्थ इज फ्रेंड्स, नॉर्थ फ्रेंड्स से रिलेटेड है। वेस्ट किससे रिलेटेड है? वेस्ट रिलेटेड टू वाइफ। ईस्ट किसको रिलेटेड है? पेरेंट्स के लिए। साउथ टीचर्स के लिए, और वर्कर्स के लिए नदीर, एंड एस्थेटिक्स के लिए जेनिथ। अप एंड डाउन, इस तरीके से हमें उसकी जानकारी मिलती है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बुद्ध ने बताया है कि उसमें उसकी ड्यूटीज़ क्या है, अगर हम ये फॉलो करते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अप एंड डाउन, तो सर्टेनली हम अपने आप में डेवलपमेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी जन इस गाल सूत्र को उसे पढ़े, उसमें समझे कि कितना इम्पोर्टेंस है ये उपासक के लिए, उपासिका के लिए, क्योंकि हम अपने लाइफ में रहते हैं और इससे से अपना कल्चर हम डेवलप कर सकते हैं। और इसी के अलावा एक दूसरा सूत्र भी है, उसका नाम है दिघ जानु सूत्र। दिघ जानु सूत्र, उसे व्याघ पज्य सूत्र भी कहा जाता है या वग्ग पज्य सूत्र भी कहा जाता है। वो कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। वो भी बुद्ध ने हाउस होल्डर को दिया गया है। He's the colon, means colon हाउस होल्डर। उसने बताया कि उसमें 8 पर्सनैलिटी क्या है, दैट कंडीशन दैट लीड टू हैप्पीनेस एंड वेलबींग। हैप्पीनेस कैसे होता है? हार्ड वर्किंग, उत्थान संपद, विजिलेंस, आरख संपद, वर्चुअस फ्रेंडशिप, कल्याण मित्र, बैलेंस लिविंग, सम्मा जीविका। उसके अलावा फेथ, श्रद्धा, वर्चू, सील, जेनोरोसिटी, त्याग, एंड पय्या, विजडम। तो ये 8 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम ये सूत्र भी हम समझेंगे। तो 2 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध ने उपासक और उपासिका के लिए दिए गए हैं। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट कल्चर हमें किस तरीके से समझ सकते हैं हम डायरेक्टली। बुद्धिस्ट ट्राई टू लिव बाय द 5 precepts ऑफ हार्मलेसनेस। 5 प्रिसेप्ट कैसा है? उसमें पंचशील का फॉलो करना चाहिए। The 5 precepts are strongly encouraged, refraining from intentionally killing and living being, refraining from any form of stealing, refraining from any sexual misconduct, in particular from committing adultery, refraining from any form of living, refraining from any taking of alcohol and non-medical drugs. इससे हमें अलिप्त रहना है, दूर रहना है। इसके अलावा कल्चर का क्या एम्फसाइज होता है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। Some Buddhists from Southeast Asian countries are reluctant to make contradictions, disagree, or refuse requests directly, as this would be considered impolite. No may be expressed or hinted at indirectly. For some Buddhists from Southeast Asian countries, direct public criticism may lead to loss of face. For them, this is a state of severe humiliation, loss of reputation, and emotional upheaval. हमें अपने कल्चर में वाणी और जिस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में लोगों से, कम्युनिटी में, उससे पता चलता है कि इसमें कैसा कल्चर डेवलप हुआ है। तो अपनी जो वाणी है वो शुद्ध होनी चाहिए। वाणी में किसके प्रति कुटिलता होनी नहीं चाहिए, किसी में बुरा भला बोलना नहीं चाहिए। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, ये भी कल्चर का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर, अभी किस तरीके से हम समझना उसे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बात नहीं करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का एम्फसाइज ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ अ पावरफुल इफेक्ट, उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है ऑन रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिव सर्विस प्रोविजन। नॉन वर्बल सिग्नल्स acceptable in one culture may be completely unacceptable or even offensive in another. अब इसमें कोई एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सिंपल एग्जाम्पल। जब भी हम कोई बड़ी मॉनेस्ट्री में जाते हैं या कोई विहार में जाते हैं, तो हमें बहुत सारे कंट्रीज में, बुद्धिस्ट कंट्रीज में मैंने देखा है कि हमें डायरेक्टली अपना जो, जब हम बैठते हैं विहार में या फिर मॉनेस्ट्रीज में,
तो हमें अपना जो पैर है बुद्ध के स्टैचू के समय लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे ये इट बिकम्स लाइक, उनको ऐसा लगता है कि डिसरिस्पेक्ट है, तो वो कल्चर में इनबिल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से उसका एग्जाम्पल बताता आपको मैं भी। वन ऑन एंटरिंग अ टेम्पल और मोनेस्टिक बिल्डिंग and in many shrines in homes, and in many cases a Buddhist homes, example, shoes and any head covering should be removed. At monasteries, temples and shrines in homes, Buddhists will usually bow 3 times, 3 बार वंदन करेंगे बुद्ध धम्म संघ को, before a statue of a Buddha, has a mean of paying respect, the example of Buddha, to his teachings and the enlightened monks and nuns. Non-Buddhists are not expected to bow. उन्हें bow नहीं करना चाहिए, उन्हें कर सकते हैं. Lay Buddhists will often bow as a mark of respect to monks, nuns, and in some culture to elders. Some Buddhist monks and nuns are generally not allowed to come into direct physical contact with members of the opposite gender. Police and soldiers or any other person shall not carry weapons into Buddhist temple or monastery. In some traditions, pointing the soles of the feet, जैसे मैंने पहले बताया, pointing the sole of the feet towards a statue of a Buddha, a shrine, monk, nuns, or people in general is considered very impolite. ये भी culture का part है. Touching the head of a person is considered to be impolite. कहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर में इसको भी impolite कहा जाता है. The only exception relate to special circumstances such as during a medical treatment in which permission should be sought and will generally be readily granted. कहाँ का कोई टेम्पल्स में कभी किसी ने बॉडी पे टैटू लगाया है तो वो भी कवर करना रहता है. दिस इज पार्ट ऑफ सम कल्चर्स. इसके अलावा भी जब जाता हूँ मैं ग्रीटिंग पे, greeting is a part of Buddhist culture too. The following sensitives means need to be observed on greeting or introduction. It is inappropriate for some Theravada Buddhist monk and nun to shake hands. हम सब हाथ जोड़ के वंदन करते हैं. A common Buddhist way of greeting is to put the palms of the hand together and raise them to the chin. Means chin की तरफ लाना. इसके बाद names and titles. Buddhist monks and nuns can be addressed as Venerable, Roshi, Ajahn, Master, Bhante, Sister, Aye. Bhante जी हम बोलते हैं ना, बिक्कू बिक्कुनी के नाम से उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है. इसके डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशन, Buddhist clergy generally prefer to laugh at any mistakes in protocol and really take offense. इसके बाद dress and appearance, it be part of culture. The following dress codes apply. Buddhist monks shave their heads and wear a robe that is usually brown or tan, orange, red, maroon, gray, or black. I mean, depend upon the countries. Country to country, सबके chewer different होते हैं. Buddhist nuns also shave their head and wear a robe which is usually brown, maroon, white, gray, or pink. Depend upon the tradition. Lay Buddhists follow a different dress code, particularly a white dress. Visitor to Buddhist temples, monastery should dress and behave modesty as is customary in religious place or building. इसके बाद seating. The following sensitivity need to be observed in seating arrangement for any officials or religious activities. The rule for some Buddhist monks and nuns not allow them to be alone with the opposite sex. Lay Buddhists of both genders have no such requirements. This is also part of Buddhist culture. Means भिक्खुनी या भिक्खुनी संघ तो different रहते हैं. इसके बाद food, drink and fasting. Recognizing and appropriate foods, beverages essential in responding to the need of religious communities. When hosting people from diverse religious and culture backgrounds, always a selection of vegetarian, and maybe through who are non-veg also, they can also eat it
means there's no harm. People have their own food as per their need, but somewhere people are not avoid themselves to have non non-alcoholic drinks. And related to fasting means वर्षावास, ये भी फॉलो किया जाता है बुद्धिस्ट कल्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसका इंपॉर्टेंस क्या है बुद्धिस्ट कल्चर का? religious festivals and days of significance. The following key religious festivals and significant cultural and religious days are celebrated. कौन से? पहला है the Buddhist Uposat, a day of renewed dedication, is observed roughly every 7 to 8 days on the waning moon, new moon, waxing moon and the full moon days. उसे हम कह सकते हैं 2 अष्टमी, एक चतुर्दशी और एक पूर्णिमा. इस दिन पे ले बुद्धिस्ट उपासक और उपासिका उपोषित का पालन करते हैं. कोई पंचशील करता है, अट्टशील, दशशील. इट्स अ कॉमन डे फॉर विजिटिंग अ मोनेस्ट्री. इस दिन पे बुद्धिस्ट कल्चर में मोस्टली इस दिन पे लोग बिहार में जाते ही हैं. मीन्स जितने ब्रॉड एशियन कंट्रीज हैं, बुद्धिस्ट एशियन कंट्रीज. इसके अलावा दूसरा है स्पेशल डे है वो वैसाख डे. is a full moon day of May. It commemorates the birth, enlightenment, and the final passing away of the Buddha. It's a major Buddhist festival in that year. और उसके बाद जो है the rain retreat, Varsavas, Vassa, is approximately from the full moon of the July month, the full moon of the October. During this time, Theravada, especially Theravada monks and nuns, bhikkhu, bhikkhuni, devote more time to meditate and study and not travel for long from their monastery. मेडिटेशन में ज़्यादा लोग एम्फसाइज करते हैं अपने आप पर, पढ़ाई करते हैं और पठन करते हैं. इसके बाद आता है द कथीना सेरेमनी, कठिन चिवरदान, is sometime in October or November. Means इसके पीरियड में होता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल मोनेस्ट्रीज. जिसने लेट किया है जुलाई में, जिसने अगस्त में स्टार्ट किया है, तो goes around to November. जिसने स्टार्ट किया जुलाई में, goes to October. कठिन चिवरदान. Monastic supplies are offered following the monks 3-month and retreat. इसके अलावा बुद्धिस्ट कल्चर में उसका एक पार्ट आता है फैमिली एंड मैरिज का. The differing family characteristics or different religious groups should be appreciated. अभी हमें समझना है कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, फैमिली एंड मैरिज के इम्पोर्टेंस है. मोस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ज़्यादा करके बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, भिक्खु भिक्खुनी, डू नॉट परफॉर्म, क्या बताना चाहता हूँ मैं, डू नॉट परफॉर्म मैरिज सेरेमनीज बट ऑफन गिव अ ब्लेसिंग आफ्टर द सिविल सेरेमनी. मीन्स वो मैरिज परफॉर्म नहीं करते हैं बट वो ब्लेसिंग देते हैं ब्राइड और ग्रूम को. इन सम बुद्धिस्ट फैमिली द मोस्ट सीनियर मेल इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली. द ऑफन द एल्डेस्ट सन विल प्रेजेंट, बट इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है. एवरीवन इन बुद्धिज्म, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स टू men and women. One more thing in Buddhist culture is about to serve the society. किस तरीके से? In the practice of medical, where possible, doctor, nurses, and the medical service provider treating Buddhist monks and nuns should be of the same gender. उस जेंडर के उसको हमको हेल्प करना चाहिए. The family of a sick Buddhist in hospital will often be very keen to attend to the sick relative. Sick Buddhists in hospital may also request a visit from a monk or a nun, but in some Buddhist culture, this is only for terminally ill. It's कुछ जब कोई बीमार पड़ा है और रिक्वेस्ट करते हैं, तब कभी हम भिक्खु भिक्खुनी को बुला सकते हैं. बट एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो में होता है.
इसमें अब पता जाता है सम बुद्धिस्ट कल्चर देयर इज ओनली फॉर अ टर्मिनल मील। अभी हमें बुद्धिस्ट कल्चर्स में भिक्खु भिक्खुनी से हमें जो बुद्धिस्ट कल्चर अनुकरण करना है, तो उसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज मिलता है वो है काउंसलिंग। वो भी कल्चर का पार्ट है। किस तरीके से? Buddhist monk, nuns, and some lay spiritual leaders are highly regarded by the communities and often called upon for counseling and advice. Or death and related issues, death and the grieving processes are particularly significant and important for religious communities. Some sensitivities related to Buddhism include the following. A Buddhist will normally do their best to help a dying person attain a good rebirth by ensuring that the quality of their final moment of consciousness is peaceful and free of fear and possible. जब कोई बहुत बीमार है, हम पठान कर रहे हैं सुत्त का, अच्छे सुत्त के बारे में, तो उसका मन को हम शांत करते हैं, निर्मल कर लेते हैं। अभी हमें समझना है कि कल्चर और ट्रेडिशन में डिफरेंट क्या है। ट्रेडिशन इज अबाउट पासिंग कस्टम्स and our belief from one generation to the next. Culture is the social behavior and norm that define a particular society. Culture can be seen in a social group. Tradition can be seen in every family. Culture can be defined as ideas, customs, social behavior of particular society or people. Tradition can be defined ideas, beliefs that are passed down from one generation to another generation. Culture is created by particular social group of people over a period of time. Tradition can be created by individuals. अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस हम जब जान रहे हैं कल्चर के बारे में, क्यों आज के टाइम पे इसका इतना महत्व क्यों है? कल्चर का महत्व इसके लिए है क्योंकि कल्चर गिव्स अस द एम्फसाइज ऑन लाइफ। किस बारे में? जब हम सबके प्रति अच्छा रहे, मेहता करे, लविंग काइंडनेस, तो कल्चर का इनबिल्ट कैसे होता है? श्रद्धा, फेथ, श्रद्धा होना चाहिए। उसके अलावा बुद्धिस्ट कल्चर में जो एम्फसाइज ज़्यादा होता है उसे कहते हैं दान। हमें दान देना चाहिए। अभी दान किसके लिए, दान किस प्रकार से देना है, बुद्धिस्ट कल्चर में दान का इतना महत्व क्यों है, वो भी हम जानेंगे। दान का महत्व इसके लिए है, दान जस्ट मॉनिटरी दान नहीं होता है, इसमें दान होता है श्रमदान। इसके अलावा ब्लड डोनेशन, कोई होता है ऑर्गन डोनेशन। बुद्धिज्म में दान में जो एम्फसाइज ज़्यादा दिया है वो है चिवर दान, भिक्खु संघ को चिवर दान देना, या फिर अट्ठ परिकार दान। इसके अलावा प्लांटेशन करना, ट्रीज एंड प्लांट, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स एंड चिल्ड्रंस, ये भी पार्ट ऑफ कल्चर है। इसके अलावा पेशेंस, खंती बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पेशेंस में रहते हैं, when we are पेशेंस थ्रू थॉट्स, किस तरीके से, काया वाचा मन से, तो सर्टेनली अपने आप में डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट में अपने आप में जो डेवलपमेंट होता है वो सर्टेनली सोशल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है। इस प्रकार श्रद्धा, दान, खंती। इसके अलावा मैंने पहले ही कहा मेत्ता, हमें लविंग काइंडनेस सबके लिए करना है, और वो भी बुद्धिस्ट कल्चर का बहुत एम्फसाइज पार्ट है, मेत्ता। और कंपैशन सबके प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, और
बुद्धिस्ट कल्चर का एम्फसाइज कब होता है? जब हम रिस्पेक्ट करते हैं। किसको रिस्पेक्ट करते हैं? अपने कंट्री को, अपने फ्लैग, नेशनल फ्लैग को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो वैल्यूज है उसको अनुकूलन करते हैं, वो भी बुद्धिस्ट कल्चर का पार्ट होता है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्टिंग आवर ओन कंट्री इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इसके अलावा कल्चर में और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है भावना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, हमें वो जानना चाहिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मेडिटेशन जब करते हैं हम, मेडिटेशन करने पर अपने किसी के प्रति हमें जो थॉट्स आते हैं, रॉन्ग थॉट्स, उसे हमें डाइल्यूट करना है, निकाल देना है, अच्छे से रहना है। मेडिटेशन के द्वारा हमें अपने पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करना है। और पॉजिटिव एनर्जी कब होती है? जब हम खुद खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ कैसे? बी हेल्थी बाय माइंड, बॉडी एंड स्पीच। इसके लिए मेडिटेशन बहुत एम्फसाइज हेल्प करता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। तो हो गया है श्रद्धा, दान, खंती, भावना, मेत्ता। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही कहा, हुआ शील। शील, शील का पालन जरूर करना है हमें। ये उपासक के लिए भी है, उपासिकाओं के लिए भी है, भिक्खु और भिक्खुनी के लिए भी है। और शील का एम्फसाइज बुद्धा ने अपने 45 इयर्स के एक्सपीरियंस में हर बार बताया है। हम जब शील करते हैं, शील इज द फाउंडेशन। शील क्या है? फाउंडेशन है। अगर शील करेक्ट रहा तो अपने आप से दान, अपने आप से श्रद्धा बढ़ेंगी, अपने आप से मेत्ता लोगों के प्रति होंगी, अपने आप से अपना माइंड सजग होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, मीन्स अपनी भावना में हम डेवलप होंगे। तो ये सब जो 5 चीज़ें वो बुद्धिस्ट कल्चर से बहुत इंटरलिंक होते हैं। और बुद्धिस्ट कल्चर का जो एम्फसाइज है, बुद्धिस्ट कल्चर हमें क्या दिया है, अभी हम जानना चाहते हैं बुद्धिस्ट कल्चर हमें क्या दिया है। बुद्धिस्ट कल्चर ने मॉडर्न वर्ल्ड को क्या दिया? आर्किटेक्चर, आर्ट, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। अभी कौन सी लैंग्वेज? पाली लैंग्वेज। कौन सी स्क्रिप्ट? धमलिपि। और सब और भी लोग कहते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके अलावा और कल्चर ने क्या दिया है? आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट। बुद्धिस्ट आर्ट कौन सा? बुद्धिस्ट आर्ट जो कल्चर हमें मिला है। अब एम्फसाइज करो बुद्धिस्ट आर्ट में, तो बुद्धिस्ट आर्ट हमें मिला है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सांची स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। इस तरीके से इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट है जो भी बुद्धिस्ट कल्चर के पार्ट है। उसके अलावा आर्किटेक्चर, जो हम आर्किटेक्चर देखते हैं उसमें स्तूप है, विहार है, चैत्यग्रह है, लेनी है। ये सब बुद्धिस्ट कल्चर को इंटरलिंक करते हैं। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है वो बुद्धिस्ट हिस्ट्री। बुद्धिस्ट हिस्ट्री में क्या, हमें जो डायनेस्टी दिखी गई है इतने सालों से, डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं बिंबिसार राजा से, शत्रु से हम पकड़े उसको। इसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही गई है, उसमें से एम्परर अशोका जिसने 84,000 स्तूपास पूरे पूरे विश्व में, मीन्स इंडिया के जम्बूद्वीप में बनाए हैं। और इसके वजह से बुद्ध धर्म को चारों दिशा में फैलने का और सपोर्ट मिला है। और जब बुद्ध धर्म फैला सारे कंट्रीज में, तो उसके साथ बुद्धिस्ट कल्चर भी साथ में चले गए। और उस समय पर जो स्पेशल नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, तेल्हारा और बहुत सारे नाम है उसके, उसमें भी बुद्धिस्ट कल्चर का एक पार्ट था स्टडीज का, जो आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट टीचिंग हमें पढ़ना ही है, बुद्धिस्ट पढ़ना है, उसमें हमने बुद्धिस्ट कल्चर का भी इम्प्लीकेशन ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडर्न डायनेस्टी, उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी भी है, फिर हमें गुप्ता डायनेस्टी की जाती है,
हर्षवर्धन डायनेस्टी है, बकरा डायनेस्टी है, ऐसे बहुत से डायनेस्टी जो बुद्धिस्ट कल्चर को अनुकरण करके अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने एरियाज में उन्होंने आर्ट के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा आगे फैलाई है। और आज के टाइम पे बुद्धिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में उसका इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं हम, उस पर मैं एम्फोसाइज करके एंड करूँगा। बुद्धिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम लैंग्वेज, अपनी वाणी को समझे और वो वाणी से किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, वाणी से, काया से, मीन्स हम किसी को भी बॉडीली किसी को भी हर्ट ना करें, किस प्रकार का भी हर्ट ना करें, और मन से, सबसे बड़ा तो मन है। अगर मन अच्छा रहा, सबके प्रति अच्छा रहा, तो सर्टेनली अच्छा ही होगा। और इस तरीके से ये तीन जो एम्फसाइज में बताया है, काया वाचा मन, वो कल्चर को इंटरलिंक करता है और एम्फसाइज करता है अच्छी दिशा के लिए। अब बुद्धिज्म ने मॉडर्न वर्ल्ड को क्या दिया है? सबसे बेस्ट है पीस, शांति। इसके हम जानते हैं 4 ब्रह्म विहार, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उसमें ज्यादा एम्फसाइज है मेत्ता और करुणा के लिए। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत एम्फसाइज करता है, बुद्धिस्ट कल्चर को एक दिशा दिखाता है, और इसकी वजह से बुद्धिस्ट कल्चर आज सारे विश्व में फैला हुआ है। बुद्धिस्ट कल्चर में हमें पिलग्रमेज भी आता है, कस्टम्स भी आते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज भी आते हैं, ड्रेस कोड आता है, the way we teach, the way we work, way we act, the way we interact, everything decides. बस बुद्धिस्ट कल्चर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप जब पूरा पहनाव करो, मैंने पूरा कुछ अपने पर डाल दिया, मैं बुद्धिस्ट कल्चर का पूरा एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है। बुद्धिस्ट कल्चर कैसे होता है? आपके चलने से, बोलने से, इंटरेक्ट करने से, समझने से ले, बस पहनाव नहीं चाहिए। और ये पहनाव को हमें बदूर करना है। सडनली हम बुद्धिस्ट कल्चर को और बढ़ाएंगे और सबको अच्छा होगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। और आई एम थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है बताने के लिए, और बुद्धिस्ट कल्चर का इतना इम्पोर्टेंस है। और आज के टाइम पे जो कोरोना सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक का, अगर हम दान, शील, खंती, मेत्ता भावना करेंगे और एक कल्चर को एम्फसाइज अपने लाइफ में करेंगे और बाकी लोग को भी इसमें हेल्प करने बताएंगे, सडनली हम एक राइट दिशा पे जाएंगे और डेवलपमेंट ऑफ नेशन ही होगा। ऑफ बुद्धिज्म इज द की टू एवरीथिंग, and Buddhism reflects India. So I'm thankful for giving me the opportunity. I'm thankful to the Department of History. Thank you. Thank you very much, Rahul, for delivering a talk on Buddhist culture and its importance in the modern world. Thank you very much. And with these words of appreciation, I conclude that you are a young research scholar from Department of Pali. And thank you very much. Thank you. Welcome. Thank you. Yeah.